opportunity to be here. I request the photographer to please बहुत इट्स लवली टू बी हियर, बहुत मज़ा आ रहा है. थैंक यू सो मच. आप मेरी करे बात. It's been a fascinating journey honestly. कभी सोचा नहीं था कि ये जर्नी इतनी लंबी चलेगी, टचवुड, और चलती ही रहेगी. ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से. उसके बाद सच कहूँ तो मेरे दुनिया भर के, देश भर के तमाम फैंस के प्यार की वजह से इतना लंबा सफ़र तय कर पाई हूँ. तो जो मन में है, ग्रैटिट्यूड के अलावा और कुछ नहीं है. फैंस के लिए, लोगों के लिए, अपने माता पिता और ऊपर वाले के लिए. बट हैविंग सेड दैट, यू आर वेरी राइट. व्हेन यू स्टार्ट दैट अर्ली, आई थिंक इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को ही दूंगी एक बार फिर, क्योंकि उन्होंने ना घर में मुझे कभी स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया. तो घर में मुझे अपना बेड खुद बनाना पड़ता था, अपनी वार्डरोब खुद लगानी पड़ती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, आई हैड टू गेट ग्रेट मार्क्स इन माई एग्जाम्स. So basically, films and acting was treated only as a hobby, and it was more important to them that I come with colorful mark sheet more than a colorful life or career. So they never treated my career as the career per se. उन्होंने उसे हमेशा हॉबी समझा, और मेरे में का जो बच्चा है उस बच्चे को बच्चा रहने दिया. वरना दुर्दैव से कभी कभी क्या हो जाता है, the parents only start treating those kids like superstars at a very early age, where kids don't know how to handle all that. तो मैंने तब से अब तक अपने स्टारडम को कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं ना, सीरियसली नहीं लिया है. मुझे लगता है कि स्टारडम वगैरह चीज़ें जो होती है ना, वो सुबह के वक्त पे ओस नहीं गिरती है पत्तों पे और फूलों पे, कुछ वैसे होती है. और जैसे ही नहीं, तो उसे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि seeing me, you all are feeling good, you all are feeling great, you all are feeling like, oh, I also am glamorous, and we all are glamorous, empowered and self-aware, intelligent women. That, if I can give you that feeling, for me that feeling is a much bigger achievement than anything else, and I'm just glad that I got to make such a big journey in this line of work, which is a very slippery line, I must say. Wonderful, wonderful. So basically gratitude. Yes. And मतलब आंखें चकाचौंध हो गई कसम से. जब से मैं आई मैं देख रही हूँ हर कोई बिल्कुल, और मैं आगे उसी पर आ रही थी. It's always a pleasure to come to Punjab. Having said that, because I love the food, the people, the culture, the vibe, the music, the list just goes on and on and on, honestly, from the bottom of my heart. But honestly, this is my first time in Ludhiana, so it's even more special that it happens to be a cricket floor, where I get to see literally all the glamour, जिसको कहते हैं ना full, जिसके बोलते हैं ना जोश में एक ग्लैमर जो बाहर निकला है. सो मैं और अनामिका जी आते वक्त बोल रहे थे कि ओके लेडीज आर देयर. आई सेड बट ladies better turn out on all their glamorous best, and I can see you all are so lovely to be here. Yes, I started very, very early, as some of you might know, or all of you might know, as a child actor, and that has been a big blessing because even though my parents, and I come from a very simple household where there was more importance given to my studies than the glamour and whatever else that comes with films. But I was very fond of acting, so it's great that my parents never stopped me and they encouraged me. And having said that, I would like to say, in the context that we are meeting here today, the biggest things that the parents can give to their daughters
is the strength of freedom for them to grow on their own, to make their own choices, to go on with their own journey and just stand by them in case they need them, you know. मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट लोग होते हैं। इसकी सिंपल सी वजह ये, तो अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसकी सिंपल सी वजह ये होती है कि मुझे ये लगता है कि हालांकि आज मुझे कुछ आपसे बातें करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं समझती हूँ आप में से हर कोई ज़िंदगी के, करियर के और एक जनरल एडवाइजेस मुझे दे सकता है। इतने एम्पावर्ड आप हर कोई हो, ऐसा मैं वाकई मानती हूँ। वुमेन ओवरऑल होती है, और जब इंडियन वुमेन होती है कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उनको इतनी सारी चीज़ें एक साथ एफर्टलेसली करने की आदत होती है, और ये जो खासियत है वो खुद ही भूल जाती है कि यार मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। सो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट responsibility of every woman to pack every other woman, and I think the women empowerment starts with that. So I was very, very lucky to have born in a family where a girl child was celebrated, and they were very happy. My parents wanted a daughter, so I was born, and मुझे ये बड़ा freedom मिला, इसलिए मैं ये मेरा एक कर्तव्य मानती हूँ wherever I go to say the same to Indian parents in general, that to give the same freedom to their daughters. So having started that early, I think I became more responsible earlier, I became more aware earlier, and it's been a fun ride thanks to the love and affection of all of you present here and all the wonderful people of this country. Wonderful. आज का इवेंट हमारा उर्मिला जी के साथ में था, विच वॉज ऑन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हम चाहते हैं फ़िकी के ज़रिए रूरल एरियाज़ में पहुँचें और लड़कियों को बताएं कि अपने पाँव पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अपने पाँव पे खड़े होना तो ज़रूरी है, साथ में पैसा कमा के और उसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उर्मिला जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया कि वो बचपन से जैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके रखा है उन्होंने, उनको पेरेंट्स ने उनके बहुत इंकरेज किया था। तो वो चाहती हैं आजकल के पेरेंट्स को भी अपनी बेटियों को बहुत इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें फाइनेंशियली। और उर्मिला जी ने ये भी बताया कि पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी करें कमाने के मिस पूजा वाधवा है। क्या कहना चाहिए आज फिक्की के फंक्शन में पहुंचे, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत ही इंकरेजिंग फंक्शन था। इट वाज अबाउट हाउ वुमेन कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इन फैक्ट शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड इवन आफ्टर अर्निंग द मनी द प्रॉब्लम विद द वुमेन इज़ दैट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट। तो उर्मिला जी ने बहुत इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि पैसा कमा के उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना, उसको ग्रो करने के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, एवरीबडी एंजॉयड इट अ लॉट, एंड द स्टेज वाज ग्रेस्ड बाय अनामिका जी, अंकिता गुप्ता, संगीता मैम, एंड एवरीबडी डिड अ वंडरफुल जॉब। ऐसे लगा कि समा बंध गया है। इट वाज अ वेरी वेल प्लान, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सक्सेसफुल इवेंट। कैसा रहा, उनके साथ बातें हुई, आज क्या बात हुई? मेरी तो उर्मिला जी से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई, बट जो अनामिका जी की उनसे बात हुई, जो अंकिता जी की बात हुई, वो मैंने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही एंटरटेनमेंट भी था उनकी बातों में। सीरियसनेस के अलावा बहुत ज़्यादा ह्यूमर और फन भी था, जो बहुत अच्छा। आज लुधियाना शहर में रंगीला मूवी की एक्ट्रेस, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस, जो कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस से उन्होंने शुरुआत की थी मासूम मूवी में, जिनको हम तब से देखते आए हैं और उनके चार्म में हम हमेशा, उनके जादुई चार्म में हम एनगल्फ्ड रहे हैं। और उनकी इस करियर के बारे में आज उन्होंने फ़िकी फ्लो लुधियाना चैप्टर में आके उन्होंने हम लोगों को अपनी लाइफ की जर्नी और एक कैसे सब्सटैंशियल वुमन, एक एम्पावर्ड वुमन और एक फाइनेंशियल लिबर्टी और किस तरह से एक उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व पेश किया। और वो एक बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं और उन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब बड़ी ऑनेस्टली दिया और ये बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में अगर आपने ठान लिया हो। और आज सारे मेंबर्स ने बहुत एंजॉय किया और
इस प्रोग्राम को एंजॉय करके और उस इतनी अच्छी पर्सनालिटी को जिन्होंने पिंजर जैसी और आर्ट मूवीज़ भी की हैं और कमर्शियल मूवीज़ भी की हैं, हम लोगों को आज बहुत एंटरटेन किया। थैंक यू। मेरा नाम श्वेता जिंदल है, मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ फ्लो लुधियाना चैप्टर की। आज का इवेंट हमारे उर्मिला मातोंडकर जी आई बॉम्बे से एंड शी स्पोक अबाउट हर जर्नी इन फिल्म इंडस्ट्री। शी टॉक्ड अबाउट हर मूवीज़, हाउ शी केम फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली एंड शी मेड सच अ बिग नेम एंड शी इंस्पायर्ड ऑल द फिक्की फ्लो लुधियाना मेंबर्स। कैसा रहा उनके साथ साथ बातें भी हुई उनके साथ अपनी? उन्होंने सब मेंबर्स के सवाल जवाब दिए एंड शी वाज वेरी वाइब्रेंट एंड यू नो शी वाज वेरी हैप्पीली आंसरिंग एवरीबडी। सबके जवाब दिए उन्होंने एंड सब फ्लो मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन किया। बहुत अच्छा इवेंट रहा आज का। और ऐसे एनजीओ आपकी संस्था ऐसे काम आगे भी है कुछ फिल्म? यस, तो फिकी फ्लो का बेसिक एम क्या है? विमेन एम्पावर करना। तो हम यहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे मेंबर्स को बुलाते हैं, हम उनको ऐसी जर्नीज़ बॉलीवुड से आई जो उर्मिला ने उनको इंस्पायर करा, एम्पावर करा और यही मोटिवेट किया कि फ्रॉम नोवेयर वन कैन रीच एनीवेयर। शिद्दत से अगर कुछ मांगो और हार्ड वर्क करते रहो। तो क्या मैसेज देंगे लेडीज़ को, अपने शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे लेडीज़ को जोड़ना चाहिए जैसे आप जुड़े हैं? यस, मेरा मैसेज भी यही है जो सेम उर्मिला जी ने दिया कि फ्रॉम नोवेयर वी कैन रियली अचीव ऑल आवर ड्रीम्स एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल स्टोरी फॉर आवरसेल्व्स एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मेक अ मार्क इन दिस वर्ल्ड।